سبھی بڑے اپنی مرضی سے ادھر ادھر جاتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی اپنی مرضی سے کہیں جانے بھی نہیں دیتا۔ ہم چھوٹے پکشیوں کی بھی کیا زندگی ہے، نہ کچھ کھا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ پی سکتے ہیں۔ کل میں نے ایک جگہ اتنے سارے پھل دیکھے، میں نے مما سے کہا مما چلو پھل کھاتے ہیں، لیکن مما نے کہا نہیں، وہاں خطرہ ہے۔ نہ جانے کس چیز کا خطرہ ہے ہمارے بڑوں کو، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں۔ جہاں دانا زیادہ ہوتا ہے وہاں کوئی لے کر نہیں جاتا، اور جہاں ایک ایک دانہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے ہمارے بڑے تو ہمیں اسی جگہ لے کر جاتے ہیں۔ شاید ہمارے بڑوں کو زیادہ محنت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ رانو چڑیا کا بیٹا کوکو، کبوتر کا بیٹا کی اور چھوٹا مٹھو بیٹھے ایسے باتیں کر رہے تھے کہ جگو کوا بھی وہاں آ جاتا ہے۔ دوستو میں ابھی ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں، چلو ہم سب وہاں دانا کھانے جاتے ہیں۔ جگو کی بات سن کر سبھی دوست خوش ہو جاتے ہیں اور جگو کے ساتھ اڑ جاتے ہیں۔ جگو کوا اپنے دوستوں کو ایک ویران جگہ پر لے جاتا ہے۔ وہاں ایک سوکھا ہوا پیڑ تھا، سوکھے ہوئے پیڑ میں ایک چھید تھا اور چھید والے پیڑ کے پاس دانا بکھرا ہوا تھا۔ دیکھو میں نے کتنا زیادہ دانا ڈھونڈ لیا، چلو سب جی بھر کے کھاتے ہیں۔ لیکن جگو بھائی، یہ دانا تو میں نے کل بھی دیکھا تھا، لیکن مما نے اس طرف آنے سے منع کر دیا۔ مما نے کہا یہاں خطرہ ہے۔ کوکو کی بات سن کر وہ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ خطرہ ہے؟ لیکن کس چیز کا خطرہ؟ کیا ہمیں اس سوکھے پیڑ سے خطرہ ہے جو خود اپنی رکشا نہ کر سکا اور سوکھ گیا؟ پھر ہمیں ان سوکھی ہوئی جھاڑیوں سے خطرہ ہے جو صاف نظر آ رہی ہیں، اور ان میں کوئی خطرناک جیو بھی نہیں چھپا ہوا۔ آج سے ہم اپنے فیصلے خود کیا کریں گے، ہر بات بڑوں کی ماننا ٹھیک نہیں۔ اگر ایسے ہی ہم بڑوں کی بات مانتے رہے تو ہم ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے۔ چلو سب مل کر دانا کھاتے ہیں۔ کوکو بھی اپنے دوستوں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ سب مل کر دانا کھانے لگتے ہیں۔ پیڑ کی کھوکھر میں چھپا ہوا سانپ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے چھوٹے بچوں کو گھور رہا تھا۔ بہت دنوں بعد تازہ ماंس دیکھا ہے، آج تو میرا دن ہی بن گیا، مزہ آ جائے گا۔ اگر ان میں سے 2 چھوٹے پکشی بھی مل جائیں تو 1 مہینے تک مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، کوشش کرتا ہوں۔ سانپ آہستہ آہستہ پیڑ کی کھوکھر سے باہر آتا ہے اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر آگے بڑھتا ہے۔ تبھی کوکو کی مما رانو چڑیا اڑتی ہوئی وہاں آ جاتی ہے اور شور مچاتی ہے۔ سانپ بچوں بھاگو، جلدی سے اڑ جاؤ۔ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ جلدی کرو، وہ دیکھو جھاڑی کے پیچھے سانپ چھپا ہوا ہے۔ سبھی دوست پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہیں اور ڈر کے مارے ترنت وہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ پھر بچ گئے۔ جب تک یہ بڑے پکشی ان چھوٹے پکشیوں کے ساتھ ہیں میں بھوکا ہی رہوں گا۔ جب بھی یہ چھوٹے پکشی میرے جال میں پھنسنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بڑا پکشی آ کر ان کو بچا لیتا ہے۔ افسوس۔ سانپ نراش ہو جاتا ہے اور واپس اپنی کھوکھر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بچوں آپ سب کو معلوم ہے ہم بڑوں نے آپ کو اس طرف جانے سے منع کیا ہوا ہے، پھر آپ سب اس طرف کیوں گئے؟ اگر میں تھوڑی دیر نہ پہنچتی تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ بھوکا سانپ آپ سب کو باری باری کھا جاتا۔ مما، میں نے اپنے دوستوں کو منع کیا تھا لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ آنٹی کوکو بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ جب مٹھو نے کہا کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنا ہوں گے تو کوکو خوش تھا۔ یاد رکھنا بچوں، آج کے بعد کوئی بھی اس سوکھے پیڑ کی طرف نہیں جائے گا۔ چلو اب آپ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ مما، میں حیران ہوں کہ آپ بڑوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں خطرہ ہے اور کہاں خطرہ نہیں۔ میرے بیٹے، ہم نے جیون گزارا ہے اور اپنے جیون میں اونچ نیچ، اچھائی برائی، میٹھا کڑوا سب دیکھا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں خطرہ ہے اور کہاں خطرہ نہیں ہے۔
अगर आज कुकू की मम्मा समय पर ना आती तो खतरनाक सांप हमें खा जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल का मौसम बदल चुका था। सर्द हवाएं चल रही थी और हरी घास पर सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी। सभी छोटे दोस्त नदी के पास बर्फीली झाड़ियों पर बैठे हुए थे। ऐसे ठंडे मौसम में दाना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। दिल कर रहा है कोई नरम और मीठा फल हो, लेकिन नरम और मीठा फल तो गर्मियों में मिलता है। सर्दी के मौसम में हमारे जंगल में कहीं भी कोई ऐसा फल नहीं है। मेरी नाक बहुत तेज है और मैं सूंघ सकता हूँ। मुझे पश्चिम की दिशा से मीठे फल की खुशबू आ रही है। अगर आप सब मेरे साथ चलो तो मैं आपको खुशबू के पीछे पीछे मीठे फल तक ले जाता हूँ। यार छोटे मिट्ठू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुशबू का पीछा करो और हमें मीठे फल तक ले जाओ। छोटा मिट्ठू उड़ता है और उसके सभी दोस्त छोटे मिट्ठू के पीछे पीछे उड़ते हैं। छोटा मिट्ठू बर्फीली झाड़ियों के ऊपर से उड़ता हुआ अपने दोस्तों को जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। दोस्त छोटे मिट्ठू, यहाँ तो मुझे कोई भी मीठा फल नहीं दिखाई दे रहा। मेरी नाक कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे अभी भी मीठे फल की खुशबू आ रही है। हमें ढूंढना होगा। मीठा फल हमारे आसपास ही कहीं है। फिर अचानक उनकी नज़र पेड़ों के एक झुंड में जाती है। पेड़ों के झुंड में एक फलदार पेड़ था जिस पर लाल रंग के मीठे फल लगे हुए थे। सामने पेड़ों के झुंड में फलदार पेड़ है। चलिए हम सब वहाँ जाकर मीठे फल खाते हैं। मेरे दोस्तों, उस पेड़ के इर्द गिर्द कांटेदार झाड़ियाँ हैं। अगर हम सब वहाँ गए तो हमारे पंख घायल हो जाएंगे। और मम्मा ने मुझे समझा रखा है कि किसी भी कांटेदार पेड़ के पास नहीं जाना। ये बड़े कहाँ से आ गए? फिर वही बड़ों की बात। बड़ों ने ये कहा, बड़ों ने वो कहा। आखिर कब हम अपना फैसला खुद करेंगे? अब हम भी बड़े हो गए हैं। हम अपना फैसला कर चुके हैं और ये फल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो मेरे दोस्तों, मेरे पीछे आ जाओ। छोटा मिट्ठू उड़ता है और उसके बाकी दोस्त छोटे मिट्ठू के पीछे उड़ते हैं। फलदार पेड़ चारों तरफ से कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था। वो सब जैसे ही कांटेदार झाड़ियों से गुजरने लगते हैं तो उनके पंख घायल हो जाते हैं। जग्गू के पंख में एक लंबा कांटा चुभ जाता है। कीकी, कूकू और छोटा मिट्ठू सब घायल हो जाते हैं। वो मीठे फल के पेड़ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें इतना हौसला नहीं था कि वो मीठा फल खाते, क्योंकि उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी बात किसी ने ना मानी। मैंने कहा था, मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने आज भी कहा था कि यहाँ बड़ों ने आने से मना किया है। मेरी मम्मा ने कहा था कि कांटेदार पेड़ों से दूर रहना। मेरे पंख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो, मुझे इस कांटेदार पेड़ से बाहर निकालो। मेरा पंख घायल हो गया है और मेरी आँख में भी एक कांटा चुभ गया है। मैं तो खुशबू का पीछा कर रहा था। मेरा ध्यान खुशबू की तरफ था, लेकिन तुम में से किसी ने भी कांटेदार झाड़ी को ना देखा। सभी छोटे पक्षी कोई यहाँ तो कोई वहाँ गिरा पड़ा था। शाम हो जाती है। जब छोटे पक्षी घरों को वापस नहीं आते तो उनके बड़े परेशान हो जाते हैं। जग्गू कौवे की मम्मा गौरी कौवी परेशान होकर रानू चिड़िया के पास जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, मेरा जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या कुकू घर आ गया है? नहीं गौरी बहन, कुकू भी अभी तक नहीं आया। शायद वो सभी दोस्त इकट्ठे कहीं गए हुए हैं। चले, हमें उनके पीछे जाना होगा। गौरी कौवी और रानू चिड़िया उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें हरियाली और लूसी कबूतरी मिल जाती हैं। मैं तो पूरा जंगल छान आई हूँ, मुझे कहीं से भी मेरा छोटा मिट्ठू नहीं मिला। मेरा कीकी भी सुबह से गायब है। ना जाने आज वो सब कहाँ चले गए। मुझे डर है कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हों। मैं और गौरी भी अपने बच्चों के पीछे ही जा रही हैं। हरियाली और लूसी, आप पूर्व की दिशा में जाओ। मैं और रानो पश्चिम की दिशा में जाती हैं।
ऐसे हमें अपने बच्चों को ढूंढने में आसानी हो। फिर वो ऐसा ही करती हैं। रानो चिड़िया और गौरी कौवी पश्चिम की दिशा में उड़ जाती हैं, हरियाली और लूसी कबूतरी पूर्व की दिशा में। रानो चिड़िया और गौरी कौवी जैसे ही कांटेदार झाड़ियों के पास से गुजरती हैं तो उन्हें अपने बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मम्मा मम्मा हमें बचाएं, हम सब यहाँ हैं, हम सब कांटों में फंस चुके हैं। रानो वापिस आ जाओ, वो देखो बच्चे वहाँ हैं, वहाँ झाड़ियों में। गौरी बहन, हमारे बच्चों ने तो बहुत गलत किया जो इन झाड़ियों में फंस के। अब अगर हम में से कोई भी इन झाड़ियों के पास गया तो हमारे पंख भी घायल हो जाएंगे। गौरी बहन, आप बच्चों के पास बैठो और मैं जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। हमें कुल्हाड़ी से एक कांटेदार पेड़ को काटना होगा ताकि रास्ता बन सके। बच्चों चिंता ना करो, हम आ गए हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रानो बहन जल्दी से कुल्हाड़ी ले आओ। रानो चिड़िया तेजी से उड़ती है और थोड़ी ही दूर चील चाची के घर जाती है। रानो चिड़िया चील चाची के घर से कुल्हाड़ी लेती है और उसी लम्हे वापस आ जाती है। गौरी कौवी कुल्हाड़ी से एक कांटेदार पेड़ को काटकर रास्ता बनाती है। रानो चिड़िया बारी बारी सभी बच्चों के पंखों से कांटे निकालती है और उन्हें कांटेदार झाड़ियों से आज़ाद करती है। सभी छोटे बच्चे बहुत शर्मिंदा थे। बच्चों, जब भी आप अपने बड़ों की बात नहीं मानोगे तो आप मुसीबत में ही फंसोगे। कुकू बेटा, शायद आपके दोस्तों को नहीं मालूम, लेकिन आपको तो पता है कि कांटेदार झाड़ियों से दूर रहते हैं। सॉरी मम्मा, लेकिन मैंने इन सबको मना किया था। बेटा कुकू, हर बार ऐसा ही होता है। आप हमेशा यही कहते हो कि मैंने मना किया था और फंसते खुद भी इनके साथ ही हो। अपने दोस्तों को समझाया करो, अच्छाई और बुराई का बताया करो। चलो आप सब घर चलें, आप सब सुरक्षित हो क्योंकि आपके बड़े आपके साथ हैं। फिर रानो चिड़िया और गौरी कौवी अपने बच्चों को सुरक्षित वहाँ से घरों की तरफ ले जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और उन्हें अच्छे और बुरे का पता है। आपका फ़ैसला गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारे बड़े कोई भी फ़ैसला हमारे लिए गलत नहीं करते। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद। मिठू राजे का बेटा छोटा मिठू आम खाने की जिद कर रहा था, जिसकी वजह से मिठू राजा बहुत परेशान था क्योंकि ऐसे ठंड के मौसम में आम कहाँ से मिलते। कौवे, मेरे मिठू को समझाओ, इसे चुप करवाओ। जाओ पूरे जंगल में ऐलान कर दो, जो मेरे मिठू को ये बात समझाएगा कि आम गर्मियों में होते हैं, इस मौसम में आम नहीं होते, तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। मिठू राजा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। फिर कालू कौवा जंगल में जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सब सुनो, छोटे राजा ठंड के मौसम में आम मांग रहा है, वो रो रहा है। जो उसे चुप करवाएगा, मिठू राजा उसे इनाम देंगे। सुनो सुनो। ये इनाम तो मैं ही लूंगी। मैं अभी जाकर उस छोटे राजा को दो लगाकर चुप करवाती हूँ। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। मुझे आम खाने हैं, मैं आम खाऊंगा। छोटा राजा ऐसे रो रहा था। गौरी कौवी वहाँ जाती है। राजा जी, मैं छोटे मिठू को थोड़ी देर अलग ले जाऊं? हाँ कौवी, लेकिन मेरे बेटे को किसी तरह चुप करवाओ, ये सुबह से रोए जा रहा है। गौरी कौवी छोटे राजा को दूसरी तरफ ले जाती है। छोटे राजा, चुप कर जाओ, आम का फल गर्मियों में होता है। अगर दोबारा आम मांगा तो मैं तुम्हें बिल्ली के आगे फेंक दूंगी। क्या बिल्ली मुझे आम देगी? अगर बिल्ली मुझे आम देगी तो आप मुझे बिल्ली के पास ले जाएं। अगर तुम रोते रहे तो बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। पापा, पापा, ये कौवी मुझे बिल्ली के पास ले जाएगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोटा मिठू रोता हुआ अपने पापा की तरफ जाता है। कौवी, काली कौवी, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तुमने तो मेरे बेटे को और भी रुला दिया है। राजा जी, एक बार फिर से कोशिश करने दो मुझे। लेकिन मिठू राजा गौरी कौवी को वहाँ से भगा देता है। अगर मैंने छोटे राजा को चुप करवा दिया तो बड़ा इनाम मिलेगा और मैं आराम से अपने बच्चों को पाल सकूंगी। मैं जाती हूँ और जाकर कोशिश करती हूँ।
लूसी कबूतरी भी जाती है। वो छोटे मिट्ठू को कहानी सुनाती है। एक बार एक बच्चे ने ठंड के मौसम में आम खा लिया था और वो गंजा हो गया। इसलिए तुम कभी भी ठंड के मौसम में आम मत खाना। उस बच्चे ने आम कहाँ से लिया था? मैं भी लूंगा, मैं आम खाऊंगा। जहाँ से उस गंजे बच्चे ने आम लिया था, मुझे भी वहाँ ले जाओ। छोटा मिट्ठू और भी रोने लगता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। राजा जी, मैं थोड़ी देर के लिए छोटे मिट्ठू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि मैं इसे जंगल के पेड़ पौधों के बारे में बता सकूं। ठीक है सिपाही, चिड़िया के पीछे पीछे जाओ और चिड़िया ले जाओ, तुम छोटे राजा को अपने साथ ले जाओ। चिड़िया छोटे राजा को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया सबसे पहले अमरूद के पेड़ के पास जाती है। छोटे मिट्ठू, ये अमरूद का पेड़ है। इस पर ठंड के मौसम में फल लगते हैं और ये फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। मुझे आम चाहिए, मुझे अमरूद पसंद नहीं है, मैं अमरूद नहीं खाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ चले। फिर रानो चिड़िया छोटे मिट्ठू को संतरे के पेड़ के पास ले जाती है और चिड़िया संतरे के पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, क्या तुम्हारा फल मीठा है? हाँ, मेरा फल बहुत मीठा है और मुझ में ज़्यादा मात्रा में पानी है। जब ठंड के दिनों में पक्षी पानी कम पीते हैं तो मेरा फल उनके शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। मुझे खाने से पक्षी गोरे चिट्टे हो जाते हैं। पानी तो मैंने भी कल से नहीं पिया। तो फिर आप भी एक संतरा खा लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके शरीर में भी पानी की कमी हो जाए। छोटा मिट्ठू उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खा लेता है। अब आप मेरे साथ चलो। हाँ, मुझे आम के पेड़ के पास लेकर जाइए, मैं आम ही खाऊंगा। छोटे राजा रुकें, अभी मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पास लेकर जाऊंगी जिसका फल अंदर से लाल होता है। उसे खाने से शरीर में खून बनता है। ऐसा कौन सा फल है? फिर रानो चिड़िया छोटे मिट्ठू को अनार के पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ पर पके हुए लाल लाल अनार लगे हुए थे। क्या आप ये फल खाना पसंद करोगे? नहीं, मैं तो आम ही खाऊंगा। ये सुनकर अनार का पेड़ रोने लगता है। मैंने पूरे गर्मी के मौसम में मेहनत की, इतना पानी जमा किया कि मैं ठंड के मौसम में आप पक्षियों के लिए मीठा रस बना सकूं। मुझे इंतजार था कि जब ठंड आएगी और पक्षी मेरा फल खाने आएंगे। दोस्त छोटे राजा, मेरा फल बहुत मीठा है, मुझे आम के पेड़ के पास ले जाइए। छोटा राजा अपनी जिद पर था, इसलिए चिड़िया छोटे राजा को आम के पेड़ के पास ही ले जाती है। पेड़ पेड़, हम आपके आम खाने आए हैं, क्या आप छोटे राजा को आम दे सकते हो? मेरा फल गर्मियों के मौसम में होता है, क्योंकि मेरे फल को पकने के लिए गर्मी और धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं खाऊंगा, मुझे आम ही खाना है। मैंने अपना एक आम का फल पत्तों में छुपा कर रखा हुआ है, क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? ये सुनकर छोटा राजा खुश हो जाता है। हाँ जरूर, मैं आम खाऊंगा, मुझे जल्दी से आम का फल दे दे। फिर वो पेड़ अपने पत्तों में छुपाया हुआ एक आम का फल निकालता है। लो, ये आम का फल आप खा लो। ये तो हरे रंग का है, मैं तो पीले रंग का पका हुआ आम खाऊंगा। लेकिन राजा जी, जब धूप होगी, गर्मी होगी, तो फिर ही ये आम का फल पककर पीला होगा। इसलिए ठंड के मौसम में आपको ऐसा ही आम मिलेगा। छोटा राजा वो कच्चा आम लेकर अपनी चोंच मारता है। ये तो बहुत खट्टा है, बेस्वाद है ये आम का फल। छोटे राजा, हर फल मौसम का ही अच्छा लगता है। जो मौसम हो उसी मौसम के हिसाब से ऊपर वाले ने फल बना रखे हैं। मुझे माफ़ करना, मैं आपको मीठा फल नहीं दे सकता। मीठा अनार, मीठा संतरा, मीठा अमरूद और ठंड के दूसरे फल छोड़कर मैंने बहुत गलत किया जो आम खाने की जिद की। मैं अनार खाऊंगा, मैं संतरा खाऊंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है और सिपाही से कहती है, सिपाही, आप छोटे राजा के लिए संतरे, अनार और अमरूद के फल लेकर बड़े राजा के पास आ जाएं। फिर रानो चिड़िया छोटे राजा को लेकर महल में वापस चली जाती है। पिताजी माफ करना, चिड़िया आंटी मुझे एक एक पेड़ के पास लेकर गई और मुझे मालूम हुआ कि संतरा ठंड में क्यों होता है। अनार का पेड़ कितनी मेहनत से हमारे लिए मीठे अनार बनाता है
اور امرود کا پھل کتنا سوادشٹ ہوتا ہے. میں نے آم مانگا اور آم کا تو موسم ہی نہیں ہے. پھر سپاہی میٹھے پھلوں کی ٹوکری بھر کر لے آتا ہے اور چھوٹا راجا مزے مزے سے انار اور سنترے کھانے لگتا ہے. چڑیا، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے بیٹے کو جنگل کے پھلوں کے بارے میں جانکاری دی. یہ اس کے لیے جیون بھر کام آئے گی. پھر راجا چڑیا کو انعام دیتا ہے اور رانو چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر چلی جاتی ہے.